Hello, welcome back to the channel Awesome Learning. Today's topic is cloning vectors. In the previous video, we have done about the restriction enzymes. These are the tools of recombinant DNA technology. So the first tool was restriction enzyme. That you can see my video. There are two parts, part 1 and part 2. And now the second tool that we are going to discuss is cloning vectors. As I told you in the previous videos also, that the bacterial cell has its own chromosomal DNA, that is the personal chromosomal DNA, and along with that it has a plasmid, a circular DNA, which is called the plasmid. Okay, so let's see first what is plasmid. A plasmid is a small DNA molecule within the bacterial cell, okay, that is physically separated from chromosomal DNA. You can see they are physically separated. It's not a part of this chromosomal DNA, so there is a physical separation between them, okay, from chromosomal DNA, and can replicate independently. That means this plasmid is not depending on the main chromosomal DNA for replication. It is independent, and it can do its own work. Now it generally encodes, the plasmid generally encodes for some antibiotic resistance, okay, because the bacteria, because of this plasmid, generally because of this plasmid, this bacteria can get a resistance against some antibiotics, right? Now, as you know, we generally go to the shop for photocopy. They have a machine, photocopy machine, and we give them the document, whatever the document we want to get a photocopy, and they ask us how many copies we want. So we generally specify and we tell them that suppose I need 2 copies or 3 copies or 4 copies, whatever it is. Okay, so a photocopy machine, we select the document and we also choose the number of copies to be made from the document. Same case, similarly in genetic engineering, sometimes we want our gene of interest, a particular gene. I want a particular gene to have more copies. I want that this particular gene should have 100 copies, 200 copies. So same thing, same as the photocopy machine does the work, same thing is also done in with the gene of interest, because I want multiple copies of this particular gene I am interested in. Okay, so let's see how. So what we do is we put the gene of interest. Now that gene of interest, that particular gene which I want to insert is the alien DNA, a piece of that DNA. Okay, I take that particular gene and I insert it into the vector. I put it into the vector and then send this plasmid, the vector's plasmid, okay, vector का plasmid, I send this plasmid inside a molecular copy machine. अब कौन है मेरी यहाँ फोटोकॉपी मशीन? मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर के अंदर पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, जो भी जीन मुझे चाहिए था इंटरेस्ट, वो मैंने वेक्टर में डाल दिया, और अब मैं कह रही हूँ इस वेक्टर को कि तुम फोटोकॉपी मशीन में चले जाओ और मुझे मल्टीपल कॉपीज़ बना के दो. तो हु इज़ माई फोटोकॉपी मशीन हियर? द बैक्टीरिया और द होस्ट. So the host actually behaves as the photocopy machine, and we ask the bacteria to copy it now, and we also want multiple copies. एक कॉपी से कुछ नहीं होगा, वी वॉन्ट मल्टीपल कॉपीज. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ एज द बैक्टीरिया ग्रोज, है ना, हम वी टेक कल्चर मीडियम, और उस कल्चर मीडियम में आपको मैंने पहले भी बताया कि एस्चर्चिया कोलाई मल्टीप्लाइज विद इन आफ्टर एवरी 20 minutes.
तो सोचो विद इन 24 आवर्स मेरे पास कितना एस्चर्चिया कोलाई हो जाता है. सो एज द बैक्टीरिया ग्रोज इन द ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, पर्टिकुलर कंडीशंस दी जाएंगी, पर्टिकुलर प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, द प्लाज्मिड विच होल्ड्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने जो प्लाज्मिड में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट किया है, राइट, the gene of interest has been fitted in the plasmid. You see, this is my gene of interest. Okay, और बाकी का is plasmid. तो रेड वन इज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो जो भी मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने प्लाज्मिड में सेटअप किया था, दैट विल ऑल्सो ग्रो. अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, अगर बैक्टीरिया 1 से 100, 100 से 500 हुआ है, तो मेरा प्लाज्मिड एंड मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो मल्टीप्लाई करेगा. एंड आई विल हैव व्हाट, नंबर ऑफ कॉपीज़, मोर नंबर ऑफ कॉपीज़. मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मान लो अगर 500 बैक्टीरिया हो गए हैं मल्टीप्लाई करके, तो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी 500 तो हो ही गए, राइट. सो some bacteria will produce, now it's देखो the 100% efficiency is never there. Okay, we do not get 100% efficiency. So what happens is some bacteria will produce many copies and others produce just a few copies depending upon how they are regulated. ठीक है ना. कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, बट कुछ जो हैं वो बहुत ही फ्यू कॉपीज़ बनाएंगे. इट ऑल टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेगुलेशन पार्ट. नाउ यू हैव स्टडीड रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन. तो ज़रूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन जैसे बिहेव कर रहा है दूसरे में भी वैसे ही करे, है ना. सो द नंबर ऑफ कॉपीज़ में वैरी. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. चिल्ड्रन, एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर हम किसको मानते हैं, एक वेक्टर प्रॉपर वेक्टर हम किसको मानेंगे. तो कुछ चीज़ें हैं जो वेक्टर के पास होनी मैंडेटरी हैं, दे शुड हैव इट. द फर्स्ट वन इज़ दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट. नाउ बिकॉज दे हैव लो, जो क्लोनिंग वेक्टर है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए. व्हाई, बिकॉज ईजी टू हैंडल, ईजी टू आइसोलेट, प्लाज्मिड उसमें से निकालना आसान हो जाएगा. एंड ईजी टू ट्रांसफॉर्म इनटू बैक्टीरिया, मतलब उसमें से जो भी प्लाज्मिड निकलेगा उस वेक्टर के प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया में जब सेंड करेंगे तो मेरा ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो ईजी, सो इसलिए लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए एक अच्छे से क्लोनिंग वेक्टर का. सेकेंड थिंग इज़ द एबिलिटी टू सिलेक्ट द ट्रेट, दैट इज़ हमारा जो वेक्टर है वो एक अच्छा वेक्टर तभी माना जाएगा जब उसके पास एक ऐसी स्पेशलिटी है, एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी खूबी है जिससे वो डिस्टिंग्विश कर पाता है इन बिटवीन रिकॉम्बिनेंस एंड नॉन रिकॉम्बिनेंस. ठीक है, तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, ए सिलेक्टेबल मार्कर. तो एक अच्छा वेक्टर तभी माना जाता है व्हेन इट हैज़ ए एबिलिटी टू सिलेक्ट बिटवीन द रिकॉम्बिनेंस एंड नॉन रिकॉम्बिनेंस, एंड फॉर दैट दे रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर से हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. थर्ड खासियत क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स with large number of restriction sites to cut the plasmid and insert our gene of interest. ठीक है, एक क्लोनिंग साइट नहीं होनी चाहिए, उसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए. कहीं पे भी हम क्लोन कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन, मान लो कि ये मेरा प्लाज्मिड है, तो दिस आइडियल प्लाज्मिड शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. ये नहीं कि मैं एक ही जगह बस अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन कर सकती हूँ. बेटर नहीं रहेगा कि अगर सपोज़ आपके पास 2 प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट है, मतलब आप एक ही जगह पर फिट कर सकते हो, लेकिन दूसरा जो प्लाज्मिड है उसके पास 4-5 क्लोनिंग साइट्स हैं. तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, ऑफ कोर्स द सेकंड वन, बिकॉज क्लोनिंग साइट्स आप एक पर्टिकुलर जीन को कट करके ला रहे हो और यहाँ फिट करना चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो एक जगह पे फिट हो ही. लेकिन अगर आपके पास 4 कुर्सियाँ हैं, तो अगर एक कुर्सी में फिट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, बाकी 3 में ट्राई करोगे, और हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज़. आप उन 3 में से किसी में भी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेटअप कर सकते हो.
सो इट शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है तो मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑन द प्लाज्मिड इज़ द ऑरी, ठीक है, क्योंकि अगर ऑरी नहीं है प्लाज्मिड में तो हम जितना मर्जी चीज़ें रख लें, हम अपना काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज रेप्लिकेशन ही स्टार्ट नहीं होगा. ऑरी इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लाज्मिड का. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑन द प्लाज्मिड इज ऑरी, origin of replication, and replication of plasmid DNA is carried by the same enzyme that replicate the E. coli bacterial chromosomes. अब ये बड़ा important है, आप ध्यान देंगे कि replication में जो DNA replication of plasmid DNA is carried by same enzyme दैट रेप्लिकेट द ई कोलाई बैक्टीरिया. यानी ई कोलाई बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ प्लाज्मिड में भी रेप्लिकेशन के लिए सेम एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है. नेक्स्ट, ओरी के अलावा भी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है प्लाज्मिड में जो होनी चाहिए, दैट इज़ मल्टीपल क्लोनिंग साइट. मैंने पहले ही बोल दिया ऊपर कि बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स होंगे तो ऑप्शंस या प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इट शुड अ गुड वेक्टर, एन आइडियल वेक्टर शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. इट इज़ द साइट वेयर यू पुट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. यही वो जगह है क्लोनिंग साइट जहाँ पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए जो भी है आप फिट करना चाहते हो. तो अगर मेरे पास एक ही कुर्सी है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वो है उसी पे बिठाऊंगी. अगर वो उस पर नहीं फिट होता तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन इफ़ आई हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स तो मैं किसी भी एक में चूज़ करके बिठा सकती हूँ ना. जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैव मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स. अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेरे को क्लोनिंग करनी है. बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, मुझे एक पर्टिकुलर कुर्सी पर एक पर्टिकुलर जगह पे एलियन डीएनए को लाके फिट करना है. तो अगर मुझे उस कुर्सी पे किसी को बिठाना है तो पहले मुझे उस कुर्सी को खाली कराना पड़ेगा, राइट. और खाली कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ऐसे ही जो एलियन डीएनए का टुकड़ा मैं लेके आ रही हूँ, वो कोई पहले से थोड़ी टुकड़ा है, उसको भी तो मुझे उसके डीएनए से कट करना पड़ेगा. तो वहाँ भी मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए. यानी मुझे यहाँ जो कुर्सी खाली करानी है इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, और वो जो एलियन टुकड़ा तोड़ के लाना है उसको तोड़ने के लिए भी मुझे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए. तो दोनों, याद रखो मेरी बात ध्यान से सुनना है कि दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होने चाहिए. यानी जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं एलियन डीएनए कट करके ला रही हूँ वो, और जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं प्लाज्मिड में क्लोनिंग साइट वाली जगह पे जगह बना रही हूँ, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है. क्योंकि दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे तो स्टिकी एंड्स बनेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और तभी तो मैं लाके उनको उधर से एलियन डीएनए को लाके यहाँ फिट कर पाऊँ. सो रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैव मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स. मल्टीपल क्लोनिंग, अब सपोज मेरे पास 5 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, क्लोनिंग साइट्स यानी कुर्सियाँ. तो अगर मेरे पास 5 कुर्सियाँ हैं तो हर कुर्सी को खाली कराने के लिए मेरे पास अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. ये कुर्सी खाली करानी है, अलग रिस्ट्रिक्शन. ये कुर्सी खाली करानी है, अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. समझ आ रही है मेरी बात? सो हर मल्टीपल क्लोनिंग साइट हैज़ मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स. यू कैन कट इट देयर एंड कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड पुट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. समझ आ गई? आई होप माई पॉइंट इज़ क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने प्लाज्मिड में जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, यानी जिस जगह पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना है, पहले वो जगह खाली करानी पड़ेगी. खाली कराने के लिए आपको वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके जगह खाली करानी है. तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने प्लाज्मिड में यूज़ किया, वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप एलियन डीएनए को कट करके लाने के लिए भी यूज़ करेंगे, सेम. So I hope now this is clear. Now children, you see the steps. See the steps here followed. Now this is a table that I had made for you. So the first step is restriction of digestion of the vector.
ठीक है। ना restriction digestion of the vector means हमने जो भी वेक्टर चूज़ किया है हमने उस वेक्टर में से मतलब डाइजेस्ट करना है वॉल को और उसमें से प्लाज्मिड निकालना है। एंड डाइजेशन विद स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो भी पीस है, जो भी प्लाज्मिड है हमने निकाला है, वी विल क्लीन अप एंड प्यूरिफाई द डाइजेस्टेड वेक्टर। जो भी वेक्टर है, मेरा प्लाज्मिड इस वक्त मेरा वेक्टर है, तो मैं प्लाज्मिड ऐसे ही तो नहीं निकाल लूँगी ना, मुझे बैक्टीरियल सेल का पहले सेल वॉल तोड़ना पड़ेगा। उस सेल वॉल को तोड़ के उसमें से मेरे को प्लाज्मिड निकालना है और उसको मेरे को प्योरीफाई करना है, फ्रेश करके रेडी रखना है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ restriction digestion of the vector. Then my second step here is cut off the gene of interest with the same restriction enzyme. तो जो restriction enzyme मैंने यहाँ यूज़ किया, सेम वही restriction enzyme I will use here to cut the gene of interest. Okay, restriction digestion of the gene of interest एंड डाइजेशन विद द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो प्रॉपर होना चाहिए। और इसको भी मुझे क्लीन अप करना है, प्योरीफाई करना है, ताकि मुझे एक पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट या पीस मिल जाए, जिसको हम एलियन पीस ऑफ डीएनए बोलते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। मेरे पास वो जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए सेगमेंट रेडी है। तो अब मेरा वेक्टर भी रेडी है, इस पर भी मैंने जगह बना ली है, मेरा डीएनए का सेगमेंट भी रेडी है, मैंने क्लीन करके प्योरीफाई करके रेडी कर लिया। नाउ मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा जी? थर्ड स्टेप क्या होगा? मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में जोड़ना है, इसको बोलते हैं लाइगेशन। सो ऑफ कोर्स द स्टेप इज़ लाइगेशन एंड लाइगेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए ligase. Then comes the fourth step. Now what is the fourth step? You have to अब जब मैंने लाइगेट कर लिया तो मेरा ये रिकॉम्बिनेंट बन गया है ना, नया कॉम्बिनेशन बन गया। नाउ आई हैव टू ट्रांसफॉर्म द प्लाज्मिड। जो ये नया कॉम्बिनेशन का प्लाज्मिड मैंने बना लिया, आई हैव टू सेंड दैट प्लाज्मिड इनटू द बैक्टीरियल सेल। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नया बना लिया ना मैंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यहाँ पे जॉइनिंग करके मैंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन, यानी एक कॉम्पिटेंट होस्ट में मुझे उसको भेजना है, तो दैट स्टेप इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट स्टेप, दैट इज़ फिफ्थ स्टेप, इज़ कि जब मेरा बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, मेरा बैक्टीरियल सेल जब ट्रांसफॉर्म हो गया, जो मैं चाहती थी मैंने अपने होस्ट में जब डाल दिया, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं अपने उस बैक्टीरियल सेल की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना लूँ। तो दैट आई विल डू हियर इन कल्चरिंग मीडियम, ओके, टू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो ग्रोइंग बैक्टीरिया इन बल्क अमाउंट टू एम्पलीफाई आर जीन, मतलब जो भी जीन में इंटरेस्ट था, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको एम्पलीफाई मतलब उसका नंबर बढ़ाना, नंबर्स of copies को increase करना, right? So these are the steps that we have to follow in the transformation procedure. Now children, in the culture medium there are some bacteria which will eat up the plasmid. कुछ बैक्टीरिया तो प्लाज्मिड ले लेंगे, and when we are transforming it, when we want to transform it, but there are some bacteria which won't take the plasmid. अब मेरे पास मेरे कल्चर मीडियम में मान लो 100 बैक्टीरिया है, तो मैंने क्या कहा है कि 100% एफिशिएंसी तो कभी नहीं होती। तो मान लो कि 100 में से 80 बैक्टीरिया या 70 बैक्टीरिया ने तो प्लाज्मिड अपने ले लिया अंदर, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं लिया ना। हाउ वुड, पर मुझे कैसे, अब बैक्टीरिया वैसे ही नहीं नज़र आते नेकेड आई से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया जो हैं उन्होंने प्लाज्मिड लिया और कौन से ने नहीं लिया। सो यू नीड, तो यहाँ पर आती है अब सिलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई सिलेक्टेबल मार्कर्स आर यूज्ड। Now in case of selectable marker, it selects the bacteria against some criteria. तो एक क्राइटेरिया दे देते हैं हम उसको, और वो बोलता है कि मेरा ये क्राइटेरिया पास करोगे तो मैं इस बैक्टीरिया को चुनूंगा, अदरवाइज मैं इसे फेल कर दूंगा। Now in most of the cases, selectable markers are antibiotic resistant genes, antibiotic genes which encode by the plasmid. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं ज़्यादातर। सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। नाउ सिंपली इफ़ वी पुट, अब आप सोचो कि मेरे पास एक कल्चर मीडियम रेडी है, ठीक है,
एक कल्चर मीडियम रेडी है और इसमें मैंने खूब सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो मैं ग्रो करवा रही हूँ, बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करवा रही हूँ। नाउ सडनली मैंने इसमें एक एंटीबायोटिक डाल दी इस कल्चर मीडियम में, ठीक है, तो क्या होगा? द बैक्टीरिया शुड डाई। नाउ ओनली दीज बैक्टीरियाज विच हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बैक्टीरिया मर जाएंगे, नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो फिर सरवाइव करेंगे चाहे मैं एंटीबायोटिक डाल दूँ। ओके, सो इन द प्लाज्मिड इफ़ इट हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इट विल सरवाइव। अगर मैंने ऐसा प्लाज्मिड रेडी किया है जिसमें एक जीन का टुकड़ा मैंने वो डाल दिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, ओके, ये जीन का टुकड़ा मैंने डाल दिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, तो माई बैक्टीरिया विल सर्वाइव। Thereby you can get rid of those bacteria which did not take the plasmid। तो मेरे को पता चल जाएगा, हम लोग कल्चर मीडियम में जैसे एंटीबायोटिक डालेंगे तो वो बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाएंगे और जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा वो बच जाएंगे। होगी ना डिफ्रेंसिएशन। बट द प्रॉब्लम हियर इज़, अब एक फिर प्रॉब्लम आती है, इन सम ऑफ द प्लाज्मिड कुड हैव सेल्फ लाइगेटेड। वो कहते हैं ऐसा भी देखने में आया कि कुछ प्लाज्मिड्स जो थे खुद ही लाइगेट कर गए, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ प्लाज्मिड अपने आप लाइगेट कर जाते हैं एंड मे नॉट हैव द जीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कुछ ये मेरा ओरिजिनल प्लाज्मिड था, राइट, एंड लेट मी शो यू, और मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कुछ ऐसा सा है, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, नया कॉम्बिनेशन का जो प्लाज्मिड बना, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि ये वाला प्लाज्मिड आगे मल्टीप्लाई होता जाए, लेकिन कहते हैं कि प्रॉब्लम ये हुई कि हमने देखा ये वाला तो हो ही रहा था मल्टीप्लाई, बट ये जो ओरिजिनल प्लाज्मिड थे ये भी अपने आप लाइगेट होके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, इस वाले प्लाज्मिड में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो इस वाले टाइप में था, नए कॉम्बिनेशन वाले में था। सो व्हाट हैपन्स, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया, अब आप क्या, ऊपर हमने कहा कि जिसने प्लाज्मिड ले लिया वो बैक्टीरिया सही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि प्लाज्मिड नए कॉम्बिनेशन वाला लिया है या पुराने कॉम्बिनेशन वाला ले लिया है? तो ये प्रॉब्लम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी हैड अनदर स्टेप्स विच आर नोन एज स्क्रीनिंग मार्कर्स। हमारे पास सारे हथियार हैं, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैक्टीरिया चालाकी कर रहा है, हम भी करेंगे। तो हमने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने देखा कि हमारे पास स्क्रीनिंग मार्कर्स है। स्क्रीनिंग क्या होती है? जब मुझे कोई ऑडिशन लेनी है तो मैं स्क्रीनिंग करती हूँ ना, अगर 100 बच्चे आए हैं तो उसमें से मैं स्क्रीनिंग करके 50 निकाल लूँगी अलग। सो सेम वे वी हैव स्क्रीनिंग मार्कर्स मोस्टली इन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स देयर आर सर्टेन जीन्स विच वर्क लाइक स्क्रीनिंग मार्कर्स। इसी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में कुछ जीन्स ऐसे हैं जो स्क्रीनिंग मार्कर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो एक एग्जाम्पल, वन सच एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज, वन सच एग्जाम्पल इज LAC-Z. Now you have studied about LAC-Z in lac operon also. It is a component of lac operon which codes for beta galactosidase, if you remember lac operon. Now what happens here? Beta galactosidase converts X-gal. Now X-gal is a variant of lactose. Variant means a type of lactose. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इस एक्स गैल को कन्वर्ट करके कलर्ड प्रोडक्ट बना देता है। यानी अगर मेरे कल्चर मीडियम में LAC-Z है तो मेरे कल्चर मीडियम में जो बैक्टीरियाज हैं वो ब्लू कलर में शो करना शुरू कर देंगे, बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, उसे एक्स गैल को, ठीक है, अ टाइप ऑफ लैक्टोज को कलर्ड कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो मुझे ऐसे ब्लू कलर पैचेस दिखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इफ़ द बैक्टीरिया इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, अगर तो मेरा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू प्लाज्मिड जिसके पास LAC-Z है, अगर मेरा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है एक ऐसे प्लाज्मिड में जिसके पास LAC-Z है एज द सिलेक्टेबल मार्कर,
तो जीन की जो बैक्टीरियल कॉलोनी मेरे कल्चर प्लेट में, मेरी कल्चर मीडियम में जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगी वो ब्लू कलर की दिखेगी। क्यों ब्लू कलर की दिख रही है? बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज एक्टिव। लैक्जी है तो लैक्जी है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है? वो एक्स गैल को कन्वर्ट कर रहा है इनटू कलर्ड कंपोनेंट, तो इसलिए ब्लू कलर दिख रहा है, एंड दे हैव कन्वर्टेड द कॉलोनी इनटू ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन सम हाउ मान लो इफ़ यू इंसर्ट द जीन, आपने जीन इंसर्ट करा लेकिन आपके इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका लैक-जी जीन डिसरप्ट हो गया, आपने इस जीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसरप्ट हो गया या कोई दिक्कत आ गई, तो जब लैक-जी जीन ही डिसरप्ट हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन बंद हो गया। ठीक है, एंड बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रोडक्शन बंद हो गया तो यू डोंट हैव एनी कलर्ड फॉर्मेशन। सो नाउ व्हेन यू ट्रांसफॉर्म द प्लाज्मिड यू विल सी दैट द कल्चर मीडियम इज कलरलेस। अब तुमको कल्चर मीडियम में ब्लू कलर नहीं दिखेगा, यू विल गेट वाइट और कलरलेस colonies of bacteria. So we can clearly understand that blue colonies correspond to self ligated plasmid। blue colonies वो थी जो self ligate हो गए अपने आप ही, यानी ये वो colonies थी जो मेरा पुराना प्लाज्मिड था। एक तो मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, एक था पुराना, तो ये पुराना प्लाज्मिड ही लाइगेट हो, मतलब अपने आप रेप्लिकेट होता गया और वो बनता गया। यानी ये कौन है? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, यानी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, नया कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पुराने कॉम्बिनेशन ही। सेल्फ लाइगेटेड वाले कौन है? पुराने कॉम्बिनेशन है। एंड अनडिसरप्टेड स्क्रीनिंग मार्कर जीन्स, एंड जो वाइट कॉलोनीज शो कर रहे हैं वो डिसरप्टेड मार्कर्स है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। हमने कर लिया डिफ्रेंशिएशन। द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज आर वाइट, तो वाइट वाले हैं वो रिकॉम्बिनेंट है, राइट, एंड वी कैन टेक देम आउट। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा मेरे कल्चर मीडियम में जो ब्लू वाले हैं वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, यानी वो पुराना कॉम्बिनेशन है, और मुझे तो पुराना कॉम्बिनेशन चाहिए ही नहीं था। मैंने इतनी मेहनत करी ताकि मैं नया कॉम्बिनेशन और अपना टाइप का जीन ऑफ इंटरेस्ट पा सकूं, तो मुझे पता चल जाता है कि जो वाइट कॉलोनीज़ हैं वो न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो मैं वाइट कॉलोनीज़ लेती हूँ और मैं अब उसको बल्क में उसका प्रोडक्शन शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ज़्यादा चाहिए आगे का काम करने के लिए। So I hope you have understood. Now this is a summary, children. This is how your plasmid looks like. An ideal plasmid should have an ORI, okay. It should have multiple cloning sites. Now multiple cloning sites can have multiple restriction enzymes, जैसे ECOR1, HIND2, ECOR ये O है, ECOR5, SAL1, BAMH1, ये सब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, और हर मल्टीपल क्लोनिंग साइट के मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये मैंने अभी ऊपर बता दिया। इट ऑल्सो हैज़ सिलेक्टेबल मार्कर्स, इट ऑल्सो हैज़ स्क्रीनेबल मार्कर्स। अब स्क्रीनेबल मार्कर्स ने क्या काम किया, सिलेक्टेबल मार्कर्स ने काम क्या किया, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू यू। आई होप नाउ द थिंग्स आर